Hello students, I am Suruchi Jain, your English language teacher. Students, you might still remember a story adventure that you all have read in class 11th. Now in that story, Professor Gaitonde was there who went to the parallel world and had strange experiences. Actually that story was a blend of history and physics. See, actually what I mean to say is adventure was not a usual story that we often read in textbooks. So, and in the same way, this chapter, third level, first chapter of your supplementary reader Vistas that I am going to explain today is not that sort of usual story. This this is a psychological story, and it is a story about a 31-year-old man, Charlie. This psychological story refers to the subway at the Grand Central Railway Station, which takes the passengers to Galesburg. Now in this story, this boy Charlie, he entered the third level at the Grand Central Railway Station, which in reality does not even exist. The third level was a way of escape for Charlie. And escape from what? Escape from the modern world, modern lifestyle, which is full of uncertainties, worries and stress. This story shows the connection between time and space. I know you people might be confused. तो confusion की कोई बात नहीं है. I'll explain the story line by line to you all. Now students, firstly I'll summarize the first paragraph and then I'll explain you the same in Hindi also. So in the first paragraph, this person Charlie, a 31-year-old city resident, talks that there exists a third level. Third level where? At New York Central Railroad. Now also he also claims that he has been there. And to talk about this problem, he visits a psychiatrist friend. And what his psychiatrist friend tells him, he calls it a waking dream wish fulfillment. First of all, students, what is waking dream wish fulfillment? Actually, it means, in reality, we may see something that is not there. But it is what we wish to see and we want to happen. We wish that, it would happen. It is like a dream come true. यानी जो हम सोचते हैं, मतलब वो हमें पता है कि रियलिटी में नहीं है, लेकिन हमारी हमेशा से इच्छा रहती है कि कुछ मतलब जो हमारी जो विशेस हैं कि वो पूरी हों. सो दैट इज़ लाइक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. तो जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है, ही कॉल्स इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट एंड explains Charlie's psychology by saying that the modern world is full of fear, insecurity, war and worries, and everybody wants to escape. Escape where? Escape to some temporary refuge from reality. Refuge is shelter. As for him, hobbies like stamp collection is an indicator of this escape. Now I'll explain the first paragraph of this chapter in Hindi also. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. अब ये जो नेम्स यहाँ पे ये जो गिवन है, न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये सारे जो हैं ये रेल रोड्स के नाम हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है. एंड हु आर द प्रेसिडेंट्स जो यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो सीनियर्स हैं वहाँ के जो इंचार्जेस हैं, वो जो नरेटर है ये हमारा चार्ली, बिकॉज इट इज़ बट आई से दैट देयर आर थ्री. हु इज़ आई हियर? आई चार्ली है यहाँ पर, जो कि एक 31-year-old एक जो सिटी रेजिडेंट है, जो वहाँ का रहने वाला है. वो बोलता है कि यहाँ के जितने हेड्स हैं वो बोलेंगे नहीं, ये जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन है यहाँ पर सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं, लेकिन वो बोलता है कि यहाँ पर 3 लेवल्स हैं, 3 फ्लोर्स हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others.
अब उसने बोला औरों के साथ साथ मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी इसके बारे में बोला, और उसने क्या बोला, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने इन रिटर्न उसको क्या बोला सुनने के बाद, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो वो जो उसका फ्रेंड है वो बोलता है ये और कुछ नहीं है, ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, जैसे कि तुम्हारा कोई सपना कभी रहा हो और वो पूरा हो गया। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. अब जब वो ये बोलता है, उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं खुश नहीं था, मैं अनहैप्पी था, इस पर उसकी वाइफ जो है वो थोड़ा परेशान हो जाती है। मैड डजंट ऑलवेज मीन यू नो कि पागल वाला मैड नहीं है इधर, वो परेशान हो जाती है, वो पैनिक हो जाती है, वो सोचती है कि ये क्या मतलब अनहैप्पी कैसे। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि एक्चुअली जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो मतलब इट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, डर है तरह तरह का, चिंताएँ हैं और भी पता नहीं क्या क्या है। तो वो बोलता है कि जो चार्ली, मैं इन सारी वरीज, इन सारी यू नो फियर्स, वरीज, इनसिक्योरिटी से एस्केप पाना चाहता हूँ, इसीलिए शायद मैं उस थर्ड लेवल तक पहुँच पाया। वेल हु डजंट, everybody I know wants to escape but they don't wander down into any third level at Grand Central Station। वो बोलता है कि अरे भाई मैं जिन जिन लोगों को जानता हूँ, मैं ही क्या सब लोग इन सारी यू नो ऐसी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे एस्केप पाना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी तरह हर कोई थर्ड लेवल तक थोड़ी पहुंच जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, क्योंकि ऐसा कोई थर्ड लेवल वहाँ पर कभी था ही नहीं। But that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. अब जो है ये वो बोलता है कि यही रीज़न है भाई कि तुमको ऐसा लगा कि तुम थर्ड लेवल पर जो है वहाँ पर पहुँचे। और उसके फ्रेंड्स और भी जो होते हैं वो एग्री करते हैं कि हाँ यही एक रीज़न होगा। एंड यू नो ही वॉज इन हैबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। जो वो बोलता है ना कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। उसको वो बहुत ज़्यादा शौक था, जितने भी स्टैम्प्स, जब भी बचपन से ऐसा एक शौक रहा है उसको, रहा था कि वो स्टैम्प्स जो है वो कलेक्ट करता था। तो वो बोलता है कि जो उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है और भी जो उसके फ्रेंड्स हैं वो एग्री करते हैं कि ये जो मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हैबिट थी दैट ऑल्सो यू नो वॉज अ टेम्पररी रेफ्यूज। दैट मीन्स एक रेफ्यूज मीन्स यू नो शेल्टर, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, कुछ भी मान लो, फ्रॉम रियलिटी। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. अब वो बोलता है कि ऐसे तो मेरे दादाजी को भी मतलब उन्होंने ही तो मेरे को ये स्टैम्प कलेक्शन की आदत डलवाई थी। उनके टाइम में तो उन्हें ऐसी कोई इनसिक्योरिटी या फियर ऐसा तो कुछ नहीं था जितना मैंने सुना है उनके मुँह से। It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue. practically every US issue इसके लिए जो US की स्टैम्प्स के बारे में बात कर रहा है। एंड ब्लॉक्स ऑफ 4 मतलब कभी आपने भी अगर कभी स्टैम्प कलेक्शन की है तो आपने देखा होगा सिंगल स्टैम्प नहीं, ऐसा 4-4 के ब्लॉक्स में आता है। तो वो बता रहा है कि मतलब मेरे दादाजी नहीं, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उन्होंने ही मेरी जो है स्टैम्प कलेक्शन की आदत जो है वो स्टार्ट कराई थी। और उसके पास शुरू से ही मतलब वो कहता है एक इतना बढ़िया लगता है, इट्स अ नाइस कलेक्शन यू नो, 2 blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. What is this first day cover? You will come to know at the end of the chapter. President Roosevelt collected stamps too, you know. Anyway, here's what happened at Grand Central. One night last summer I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब वो बोलता है कि चलो anyways जो हुआ उस दिन, now he has started telling us कि उस दिन क्या हुआ वो बताना चाह रहा है अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ। यू नो एक रात की बात है, वो समर सीज़न की बात है। उसने बोला कि मैं अपने ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया था और उसको थोड़ा जल्दी थी अपने अपार्टमेंट, अपने घर तक पहुँचने की। Uptown actually वो होता है uptown typically refers to the residential parts of the city which are often located on the outside of the commercial areas of the city, यानी suburbs समझ लीजिए आप। to my apartment, so I decided to take the subway। तो वो सोचता है कि मैं अब जो है सबवे यानी अंडरग्राउंड जो पाथ होता है, जो रेलवेज होती हैं, वो ले लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज वो बस जो रेलवेज है, वो जो रेल्स हैं
ट्रेन्स बसेस से ज़्यादा फास्ट चलती हैं. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. You know, अब वो अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों है. मैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, 31 years old हूँ, और मैंने एक टैन यू नो इट्स अ कलर येलोइश ब्राउन कलर, ऐसा उसने एक गैबर्डिन सूट पहन रखा है. गैबर्डिन सूट में ये जो कोट पैंट होता है, you can see in the picture also, it is already there. वो टैन कलर का यानी येलोइश ब्राउनिश कलर का उसने सूट पहना हुआ था. एंड अ स्ट्रॉ हैट विद फैंसी बैंड. जैसा आप देख रहे हैं पिक्चर में, उसने ऐसा स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी, उसके ऊपर एक फैंसी बैंड सा उस पर लगा हुआ था. I passed a dozen men who looked just like me. Who looked just like me? That means उसने बहुत सारे लोगों को पास भी किया जो कि बिल्कुल उसी की तरह ही दिख रहे थे, ordinary people. And I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Lisa, my wife. अब वो बोलता है मैं और किसी चीज़ से कोई escape नहीं चाह रहा था, मुझे तो बस अपने घर पहुंचना था अपनी वाइफ के पास. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. अब वो बताता है कि वो एक Vanderbilt Avenue से वो ग्रैंड सेंट्रल में एंटर करता है और फिर वो फर्स्ट उसको नीचे उतरना पड़ता है सीढ़ियों से. एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century. यानी 20th century में जैसे ट्रेन्स चलती है वैसा सब कुछ द सीन देयर वाज एक्चुअली of 20th century. Then I walked down another flight of the second level to the second level where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. अब वो बोलता है फिर मैं और थोड़ा नीचे उतरा अपना फ्लाइट ऑफ another flight to the second level, यानी और उसको नीचे उतरना पड़ा सेकेंड लेवल तक जाने के लिए. वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम. सबर्बन मैंने जैसा पहले बताया था जो आउटर एरिया होता है, सबर्बन जो ट्रेन्स है वहाँ से चलती थी. एंड डग्ड इनटू मीन्स टू क्विकली गो इनटू अ सर्टेन लोकेशन. और वो एकदम से एक आर्क्ड जैसा आर्क शेप में जो एक डोरवे था उसके अंदर गया. एंड देन टू एन अंडरग्राउंड रेलवे एंड गॉट लॉस्ट. That's easy to do. I've been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into means crossing या कहेंगे passing into new doorways and stairs and corridors. अब वो बोलता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था. वो मतलब वो सेकंड जो उसका जो लेवल था उसके अंदर जाता है, आर्क्ड डोर जो था डोरवे था उसके अंदर जाता है एंड ही लॉस्ट हिज वे. ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था. वो कई मतलब कहते हैं ना हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ही हैड बीन देयर, और बहुत बारी तो वो कई नए मतलब डोरवेज या स्टेयर्स या कॉरिडोर्स में निकल करके उसको अपने आप को पाता था वो. वंस आई गॉट into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. अब वो बताता है कि एक बारी तो वो ऐसा चलते चलते वो लॉबी में ही पहुंच गया. रूजवेल्ट एक होटल वहाँ का था, वहाँ की लॉबी में ही वो पहुंच गया. Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. और एक बारी वो बताता है कि वो कहाँ पे निकला. वो 46th Street एक स्ट्रीट का नाम है जो कि 3 ब्लॉक्स दूर था वहाँ से. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. ना अभी तो वो थोड़ा ऐसा फनी टोन में बात कर रहा है. वो बोलता है कि कभी कभी तो उसको ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल है वो ऐसा ग्रो कर रहा है, इट इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, जिसकी नई ब्रांचेस नए जो है वो न्यू कॉरिडोर्स न्यू स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, यानी उसकी रूट्स की तरह वो फैलती सी चली जा रही हैं. कभी नई स्टेयरकेसेस, कभी न्यू कॉरिडोर्स, कभी भी कहीं भी पहुँच जाता था वो. There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. अब वो बोलता है कि उसको लगता है कि पता नहीं हो सकता है एक लॉन्ग टनल हो जिसके बारे में कोई ना जानता हो, जो कि वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल से टाइम्स स्क्वायर या सेंट्रल पार्क तक उसको लेकर के जाती हो. लेकिन वो कहता है कि मैंने क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर गए हैं और उन्होंने एग्जिट भी किया है ग्रैंड सेंट्रल को, तो वो बोलता है कि पता नहीं इसके बारे में मैंने कभी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात नहीं की.
Now, students, at time the Grand Central Station, seemed like a maze to Charlie. Maze is जिसे हम बोलते हैं ना भूल भुलैया. While taking the subway earlier, he had lost his way a couple of times. Once he entered the lobby of the he is only telling us that once he entered the lobby of the Roosevelt Hotel, while the other time he appeared at an office building that was 3 blocks away. Now, however, this time he lost his way and something unique occurred. Charlie visited the 3rd level, and now I'll read further. But before reading it further, I'll tell you the summary. In the silent hallway, Charlie kept walking, turning left and sloping downward until he touched an architecturally old station, which was totally different from the 2 familiar levels. Moreover, that old small room with few ticket counters and train gates, a wooden information booth, wavering open flame gas lights and brass spittoons, all this reminded him of the architecture of the 1800s. And now I'll make you more clear by explaining the paragraph in Hindi. Abhi, the corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. अब वो बोलता है कि जिस कॉरिडोर में फाइनली वो पहुंच गया था, वो एंगलिंग लेफ्ट यानी वो लेफ्ट की तरफ जो था वो मुड़ रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स यानी वो थोड़ा नीचे की तरफ और थोड़ा लेफ्ट की तरफ एंगल लाइक लेफ्ट की तरफ वो मुड़ रहा था. एंड आई थॉट आई वाज रॉन्ग, बट स्टिल आई केप्ट ऑन वॉकिंग. As I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Didn't pass a soul यानी उसको सिर्फ because no one was there. Didn't pass a soul यानी उसने किसी को भी क्रॉस ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग और कोई बंदा नहीं था वहाँ पर. उसको सिर्फ अपने फुटस्टेप्स की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी. Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. अब उसको एकदम से कहते हैं ना वो थोड़ा सा उसको आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, ऐसी आवाज़ें जैसे जो कि अगर ओपन जैसा ओपन स्पेस में जो लोग कुछ बातें कर रहे हैं ऐसी उसको कुछ ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. अब जो टनल थी वो एकदम शार्प लेफ्ट की तरफ मुड़ी. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब वो बोलता है कि मैं फिर थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरा नीचे और फिर मैंने अपने आप को कहाँ पाया, फाइनली वो 3rd लेवल पर पहुँच गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. उसको पहले तो एकदम से ऐसा लगता है कि शायद वो 2nd लेवल पर ही पहुंच गया है, लेकिन फिर एकदम से उसको दिखता है कि वो जो रूम है वो छोटा सा है और वहाँ पर बहुत कम टिकट विंडोज़ हैं, ट्रेन गेट्स हैं, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द जो इन्फॉर्मेशन जो बूथ था वहाँ पर जो स्टेशन पर वो वुड का बना हुआ था और बिल्कुल पुराना सा लग रहा था. And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. वो जो लॉन्ग जो वहाँ पर जो पर्सन बैठा हुआ था, वहाँ पर जो मैन बैठा हुआ था, उसने ग्रीन आई शेड्स यानी ग्रीन कलर के आई शेड्स पहने हुए थे, और उसने जो वो लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स वो पहले टाइम में पहना करते थे, स्लीव प्रोटेक्टर्स वो पहने हुए थे. हैंड ग्लव्स, अब उसको आप ऐसा समझ सकते हैं. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. अब उसको लगा कि जो ये जो लाइट है वो डिम मतलब वो ऐसा फ्लिकर कर रही है, यानी वो फड़फड़ा सी रही है. फिर उसको ये समझ में आता है कि क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, वो नॉर्मल जैसा आजकल की जो लाइट्स होती हैं वैसी नहीं थी. There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. अब वो बोलता है कि देर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. स्पिटून्स अ मेटल और अर्थनवेयर पॉट यूज्ड फॉर स्पिटिंग. स्पिटिंग यानी जिसे आप पीक दान भी बोल सकते हैं, इसमें थूकने के लिए जो साइड में लगे हुए थे वो ब्रास के जो थे वो स्पिटून्स पड़े हुए थे फ्लोर पर. एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के अक्रॉस यानी उस पार उसको एक मतलब जो है एक उसको कुछ लाइट नज़र आती है और वो देखता है कि एक आदमी वो अपनी वेस्ट पॉकेट यानी जो कोट की जो पॉकेट होती है उसमें से गोल्ड वॉच निकालता है.
ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वो वैसी वाली रिस्ट वॉच नहीं, वो जो कोट के साथ कभी आपने देखे होंगे गोल्ड वॉचेस कई लोग आज भी पहनते हैं, गोल्ड वॉचेस उसने अपनी पॉकेट में से निकाली और उसका जो है कवर जो है उसने ओपन किया। glanced at his watch and frowned, और उसने जब अपनी वॉच की तरफ देखा, उसके जो फ्राउन, उसके जो फोरहेड था उस पर वो त्योड़ियाँ जो है उसकी आ गई। ही वोर अ डर्बी हैट, डर्बी हैट एक्चुअली वो जो 1890s में जो वो लंबी सी जो हैट पहनते थे वैसी डर्बी हैट। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, लेपल्स होते हैं जो कोट के साइड्स में जो फोल्ड्स बने रहते हैं उसको लेपल्स बोलते हैं। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैश, हैंडल बार आपने हैंडल बार क्यों बोला है इसको, एक टाइप ऑफ मुस्टैश, एक तरीके की मूछें होती है जो बिल्कुल जैसे आप अगर उल्टा यू बना लोगे ना तो वैसी वाली मुस्टैश। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something, and I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. और वो बोलता है कि वहाँ पे जो लोग थे वो सारे जितने भी लोग वहाँ पर उसको दिखे वो सारे ओल्ड फैशन ओल्ड ऐसा ड्रेस्ड अप थे पुराने टाइम की तरह। वो बोलता भी 1890 सॉर्ट ऑफ 1890 में जैसे 1890 में जैसे लोग ड्रेसअप होते थे वैसे ही उनका ड्रेसिंग उन लोगों ने किया हुआ था। और वो बोलते हैं कि मैंने कभी इतने तरीके की बियर्ड्स यानी इतने तरीके की साइड बन्स बोलते हैं, एक तरीके की मुस्टैशेज ही होती हैं जो पूरे फेस को कवर करती है ना, तो वो ऐसी जैसी जो है साइड बन्स और ऐसी फैंसी मुस्टैशेज उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी जैसी वहाँ के लोगों की थी। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, लेग ऑफ मटन स्लीव्स यानी वो जो ऐसी पफी सी जो स्लीव्स होती हैं, एक तरीके की स्लीव्स होती हैं उसकी ड्रेस की जो ऊपर पार्ट था उसकी स्लीव्स वैसी थी, मटन स्लीव्स जिसे बोलते हैं, लूज सी वो होती है। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और उसकी स्कर्ट जो उस लेडी ने पहनी हुई थी वो कहाँ तक थी, उसने जो बटन जो शूज़ पहने हुए थे उसके टॉप वहाँ तक उसको टच कर रही थी उसके टॉप तक। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Currier and Eves locomotive with a funnel-shaped stack. एंड देन आई न्यू, अब वो बोलते हैं कि लेडी के पीछे अचानक से उसकी नज़र जो पड़ती है वो लोकोमोटिव यानी जो कोल पर चलने वाली जो पुराने टाइम की जो ट्रेन्स हुआ करती थी उस लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईव्स यानी पुराने टाइम का एक नाम है उनकी जो लोकोमोटिव्स हुआ करती थी उस पर नज़र पड़ी, जिसके कि ऊपर फनल शेप स्टैक जहाँ से वो धुआं निकलता है ना चिमनी। तो उसने बोला कि तब मुझे समझ में आया। And to make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World, and The World hasn't been published for years. अब वो बोलता है कि तब मुझे समझ में आया, हाँ मैं अब थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूँ, कुछ अलग है, ये थर्ड लेवल है, ये सेकेंड लेवल नहीं है। अब वो बोलता है मैं और श्योर करने के लिए अपने जो इस पॉइंट को वो आगे बढ़ता है, वो एक न्यूज़ बॉय यानी न्यूज़पेपर बेचता हुआ एक लड़का उसको दिखता है, तो उसके जो फीट पे बस वे एक बहुत सारे न्यूज़पेपर का वो पड़ा होता है स्टैक, तो वो उस पर देखता है उस पर क्या लिखा था द वर्ल्ड, और वो बोलता है द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर तो सालों से पब्लिश नहीं हुआ, बंद हो गया। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस in the public library files and it was printed June 11, 1894। अब उसको यकीन हो जाता है कि ये पुराने वो किसी अलग ही लेवल पर यानी थर्ड लेवल पर वो पहुंच गया, जो कि बहुत पुराना टाइम 1890s का। I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois। अब वो बोलता है कि वो टिकट विंडो की तरफ बढ़ता है जहाँ से कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ भी उसका और उसकी वाइफ मतलब वो जाना चाहते हैं वहाँ का वो टिकट ले सके, और वो कहाँ जाना चाहता था इन द ईयर 1894 यानी बहुत पुराने टाइम में, और उसने कहाँ की टिकट वो चाहता था गेल्सबर्ग, इलिनॉय, क्योंकि वो गेल्सबर्ग को बिलोंग करता था, उसके जो ग्रैंडफादर थे यूज्ड टू लिव देयर। Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets। अब वो हमसे पूछ रहा है the readers, he is asking the readers कि have you ever been there?
जो चार्ली है वो हमसे पूछ रहा है कि क्या भी आप कभी आप गए हो, वो अभी तक बहुत ही सुंदर जो है वो टाउन है, वहाँ पर बिग ओल्ड फ्रेम के हाउसेस बने हुए हैं विच हैव ह्यूज लॉन्स, और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं इतने बड़े बड़े कि जो ऐसा लगता है कि जैसे रूफ की तरह, यानी उसको कवर किए हुए हैं स्ट्रीट्स को. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. अब वो बता रहा है, एक्चुअली वो बोल रहा है कि 1894 में तो मतलब जब लोगों में इतना वो जिसे बोलते हैं ना, टाइम की शॉर्टेज नहीं थी, पीपल यूज़ टू हैव टाइम फॉर अदर्स, और वो वहाँ पर बैठ करके खूब ना बातें करते थे, जितने मेन थे और जो विमेन थे वो अपना अपना काम करती थी वेविंग पाम लीफ फैंस, वो वेव करती रहती थी, पाम लीफ के जो फैंस बने होते थे, और फायर फ्लाइज जो है वो इधर उधर उड़ती रहती थी. To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. अब वो इतना एक्साइटेड फील करता है, वो बोलता है कि उस टाइम में ना 1894, जबकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो कि 1914 में हुआ था, वो अभी 20 साल दूर था, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही नहीं हुआ था, उसको उस टाइम में जाना था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसको तो अभी 40 ईयर से भी ज़्यादा थे अभी होने को. तो बोलता है कि मुझे तो वहाँ जाना था, आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी hat band and he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. अब वो बोलता है कि जब मैं पैसे, मतलब मेरे पास, उसको लगता है कि मेरे पास तो हैं इतने पैसे कि मैं एक तरफ वन वे का जो है मैं अपना फेयर का जो है मैं वो ले सकूं, टिकट्स ले सकूं और उसको पे कर सकूं फेयर को. तो बोलता है कि जब मैंने अपने पैसे निकाले तो उसने ध्यान दिया कि क्लर्क जो है उसकी तरफ देख रहा था. उसने बोला कि ये मनी नहीं है, ये थोड़ी मनी है. अगर तुम इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, टू स्किन का मतलब होता है टू मेक मनी फ्रॉम, या किसी से फ्रॉड करना. तो वो बोलता है कि अगर तुम मुझसे फ्रॉड करना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे. एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, half again as big as the money we use nowadays and different looking. वो बोलता है कि जब मेरा उसकी जो कैश ड्रॉअर जिसको हम गल्ला बोलते हैं उसकी तरफ उसकी नज़र जाती है, तो वो बोलता है कि हाँ, पुराने टाइप के जो थे वहाँ पे जो करेंसी थी, जो मनी नोट्स थे वहाँ पर, वो पुराने टाइप के थे, और मतलब जितना हम आज यूज़ करते हैं उससे हाफ और बड़े, यानी 1.5 गुना बड़े जो थे वो नोट्स थे, और बिल्कुल डिफरेंट लुकिंग. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. अब वो बोलता है कि मैं बिल्कुल सब भागते हुए फास्ट जो है एकदम तेज़ी से बाहर आ गया. वो बोलता है कि there's nothing nice about jail even in 1894. वो बोलता है जेल, ऐसा तो कोई जेल फैसिनेटिंग तो उस टाइम में भी नहीं था, इसका is actually just being funny. And that was that. I left the same way I came, I suppose. अब वो बोलता है कि बस, अब उसके पास तो वो करेंसी नहीं थी जो वो पर्सन मांग रहा था वहाँ पर टिकट काउंटर पे बैठा हुआ, तो वो एकदम तेज़ी से जिस रास्ते से वो आया था, वो बोलता है ऐसा मुझे लगता है मैं उसी रास्ते से वापस आ गया और अपने घर पहुँच गया. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी. दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. और वो बोलता है नेक्स्ट डे जब लंच आवर उसका हुआ, अपने ऑफिस में वो बैठा था, लंच आवर के टाइम उसने $300 अपने बैंक से निकाले, जो कि तकरीबन इतने ही थे बेचारों के पास, उन लोगों के पास. तो वो बोलता है कि और उससे उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी जो है उसने वो एक्सचेंज, आपको पता होगा ऐसा मनी जो है ना करेंसी, आप पुराने भी ऐसी शॉप्स होती है जहाँ से आप ओल्ड स्टाइल करेंसी ले सकते हो, ख़रीद सकते हो अभी भी. तो बोलता है कि लेकिन ये जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है द नेम इज़ नॉट मैंशनड हियर, यू विल कम टू नो एट द एंड ऑफ द चैप्टर हु वाज हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. तो वो बोलता है कि उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो इस बात से बहुत वरिड भी हो जाता है. यू कैन बाय old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care.
eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब वो बोलता है कि आप कहीं से भी जो है ओल्ड करेंसी खरीद सकते हो कॉइन डीलर से, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। वो कैसे? जैसे कि उसने $300 उसको दिए और उसके बदले में उसको जो ओल्ड करेंसी में मिले तो वो 200 लेस देन 200, पूरे 200 भी नहीं, $300 की जगह लेस देन 200 अमाउंट के उसको ओल्ड स्टाइल जो थे मनी मिला। उसने बोला लेकिन उसको ऐसी परवाह नहीं थी, उसने सोचा अब 1894 में जा रहे हैं और वहाँ तो चीज़ें सस्ती थी, इसके लिए वो हंसी बनाते हुए बोलता भी है कि एग्स वर 13 सेंट्स, यानी 12 जो एग्स थे, डजन एग्स थे, वो 13 सेंट्स के तो थे 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. अब वो बोलता है कि लेकिन उसके बाद वो बहुत बारी वहाँ उस कॉरिडोर उस वहाँ भी गया वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद उसे वो कॉरिडोर मिला ही नहीं जो कि थर्ड लेवल तक लेके जाता है। उसने बोला ऐसा मैंने बहुत बार ट्राई किया बट उसको कभी नहीं मिला वो दोबारा। लुइसा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps. अब वो बोलता है कि जब उसने अपनी वाइफ लुइसा को इसके बारे में बताया तो वो बहुत परेशान, उसको वो वरिड भी हो गई और उसने उसको मना किया कि भाई अब थर्ड लेवल के लिए देखना छोड़ दो, उसे ढूंढना। उसने बोला कि मैंने कोशिश भी करी, उसके बाद आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, यानी आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स का मतलब मैं दोबारा वही अपना रिज्यूम कर लिया, मैंने अपनी जो स्टैम्प कलेक्शन की जो मेरी हैबिट थी उसी को ही मैंने रिज्यूम कर लिया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड because now we have proved that the third level is still there. My friend Sam Winner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is. All right, in 1894. अब वो बोलता है कि अब वो पहले उसने बताया कि मैं दोबारा अपनी स्टैम्प कलेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी मैंने, लेकिन वो बोलता है अब तो हम दोनों ढूंढ रहे हैं हर हफ्ते, मतलब एवरी वीकेंड। हम कौन? वो चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा, बिकॉज जो उसका एक फ्रेंड था सैम वेनर वो गायब हो गया था। वो बोलते हैं लेकिन मुझे शक था कि जो सैम है कि अब वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि मैं सैम को बताया कर, सैम एक सिटी बॉय था। सिटी बॉय मतलब वो पैदा बड़ा, वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सिटी, तो उसको सिटी लाइफ की उसको आदत थी। लेकिन जो ये चार्ली था वो उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था कि वो कैसे कैसे वहाँ पर स्कूल, उसने अपनी स्कूलिंग वहाँ से की थी चार्ली ने गेल्सबर्ग से, और वो हमेशा बोला करता था जो उसका जो फ्रेंड था सैम कि उसको उसकी बातें सुनकर हमेशा मतलब ऐसा मन करता है कि उसको वो प्लेस बहुत ही जो थी वो बहुत अच्छी साउंड करती थी, बहुत बढ़िया लगती थी। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑलराइट इन 1894। वो बोलता है कि अब उसको यकीन हो गया था कि हाँ वो 1894 में ही पहुंच गया था उसका फ्रेंड। नाउ ही फर्दर इज टेलिंग अस, वो हमें बता रहा है कि उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो 1894 में चला गया था उसका फ्रेंड सैम। बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? अभी वो बोलता है fussing with my stamp collection, यानी वो कुछ ऐसे उसको ऐसा उसको देख रहा था अपनी स्टैम्प कलेक्शन के साथ कुछ कर रहा था। तो फिर वो अब रीडर्स से हमसे पूछ रहा है, इज आस्किंग अस वी रीडर्स, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। मैंने बोला था ना फर्स्ट डे कवर आपको लास्ट में पता चलेगा एंड में चैप्टर के कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। सी व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. अब वो बता रहा है कि फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं। जब भी कोई नई स्टैम्प इशू होती है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो पहले ही दिन उसको खरीद लेते हैं। जब वो सेल के लिए बाहर आती हैं तो उसको खरीद करके एक प्लेन एनवलप में, जिसमें वो कुछ नहीं लिखते बिकॉज उसको खोलना नहीं है, तो वो जिस एनवलप में वो एक प्लेन पेपर के साथ उसको उस पर वो नई स्टैम्प्स लगा करके खुद को वो पोस्ट कर देते हैं, ताकि वो पोस्ट ऑफिस जा करके जब उनके पास आए वो पोस्ट ऑफिस से जो स्टैम्प पे जो डेट लिखी हुई आएगी वो उस डेट की होगी जिस दिन वो फर्स्ट डे इशू हुई थी स्टैम्प्स। तो वो बोलता है कि दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, ताकि वो एक यादगार रहे, एक प्रूफ रहे कि हाँ वो फर्स्ट डेट पर हमने खरीद ली थी। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, अब वो उस रात की बात बता रहा है कि जब वो स्टैम्प कलेक्शन के साथ कुछ कर रहा था, उसको अपने बहुत पुराने जो फर्स्ट डे कवर्स में थे उनमें से एक दिखता है। आई फाउंड दैट
आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। वो बोलता है कि मुझे मिला एक अपना बहुत पुराना एक फर्स्ट डे कवर जो कि वहाँ पर होना नहीं चाहिए था, बट वो था वहाँ पर। और उस पर क्या लिखा हुआ था? इट वॉज देयर बिकॉज समन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। वो बोलता है किसी ने मेरे ग्रैंड फादर को वो लेटर जो है ग्रैंड फादर के एड्रेस पर वो पोस्ट किया था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, एंड इट हैड बीन देयर since July 18, 1894. The postmark showed that. अब postmark यानी वही जो मैंने बताया था ना स्टैम्प के ऊपर जो वो लग करके आती है डेट, तो उसमें वो बता रहा था, वो डेट बता रही थी कि वो 18 जुलाई 1894 वाले दिन का है। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। लेकिन वो बोलता मुझे तो लेकिन ये बिल्कुल याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज अ 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. वो बोलता है कि ये तो नेचुरल है भाई, क्योंकि उसके दादाजी के उसके ग्रैंड डैड यानी ग्रैंड फादर के नाम पर वो मेल आई थी, वो चिट्ठी आई थी, तो उनकी कलेक्शन में थी। अब आज उसने वो खोली थी और उसके अंदर क्या था देखो, द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक लेकिन स्ट्रेंजली, यानी मैंने बताया था ना कि वो बोलता है कि अंदर प्लेन पेपर रखते हैं वो, लेकिन जब वो उसे खोल करके देखता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जब वो उसको खोलता है ही फाउंड दैट पेपर वॉजंट ब्लैंक इनसाइड दैट। इट रेड चार्ली। जो लेटर था वो किसको एड्रेस्ड था? वो चार्ली को एड्रेस्ड था, जबकि वो उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पर आया था, जो कि लिखा था 18 जुलाई 1894 में, बट नाम किसका था अंदर? चार्ली का। चार्ली, I go to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. अब वो बोलता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम सही हो और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एंड देन आई गॉट टू बिलीविंग तब मुझे यकीन भी हो गया कि तुम बिल्कुल सही कहते थे, ये बिल्कुल सच है, इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल। आई हैव बीन हेयर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing seeing Nelly home. अब वो बोलता है कि ये जो मैंने थर्ड लेवल है वो मैं 2 हफ्ते पहले यहाँ पर आया था, और यहाँ पर वो बताता है कि आगे स्ट्रीट पर जो डेलीज एक होगा, एक स्ट्रीट का नाम, तो बोला कि कोई यहाँ पर पियानो बजा रहा है और सब जो है वो अपने फ्रंट पोर्च में यानी बाहर की साइड जो होता है वो पोर्च, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और दे आर सिंगिंग सीइंग नेली होम, ये कोई एक सॉन्ग का नाम है। And I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. अब वो बताता है आगे कि उसे भी वो भी इनवाइटेड है कहीं पर वो लेमनेड के लिए, किसी ने उसको भी इनवाइट किया, और वो चार्ली और लुइसा से बोलता है कि कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। वो बोलता है कि तुम ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें वो कॉरिडोर मिल नहीं जाता जो कि थर्ड लेवल तक लेकर के आएगा तुम्हें, एंड इट्स वर्थ इट। वो बोलता है कि इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। एंड द नोट इज साइंड सैम। अब आपको पता चला वो किसने वो लेटर लिखा था चार्ली को? सैम ने लिखा था। अब देखते हैं आगे, देयर इज अ मिस्ट्री दैट हैज़ टू बी सॉल्व। अब वो सैम जो है जिसको वो चार्ली और जो लुइसा ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब जिस शॉप पे वो गया था ना, कॉइन शॉप पे, जहाँ करेंसी शॉप पे जहाँ से उसने एक्सचेंज किया था अपने $300 को, उसे वहाँ जाता है तो वहाँ से पता चलता है कि सामने $800 वर्थ के ओल्ड स्टाइल करेंसी वहाँ से लिए थे। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do. And he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois in 1894. वो बोलता है कि वो जो मनी उसने $800 वर्थ के जो उसने पुराने ओल्ड स्टाइल करेंसी ली थी वो काम आएंगे उसका जो बिज़नेस सेट करने में वहाँ पर गेल्सबर्ग इलिनॉय में हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो कि शुरू से वो हमेशा से करना चाहता था इसी टाइप का बिजनेस। और क्योंकि वो 1894 में अपना जो पुराना जो बिजनेस है वो तो उसे रिज्यूम कर भी नहीं पाएगा। कौन सा पुराना बिजनेस? हिज ओल्ड बिजनेस। वाई? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। Now this story ends at a mysterious note where Charlie is wondering that Sam is psychiatrist. अब वो ये कह रहा है कि साइकेट्रिस्ट है क्योंकि वो अपना पुराना बिजनेस तो वहाँ पे रिज्यूम नहीं कर सकता,
So here, that is all for this story. This story, ends at a mysterious note. अब आपको ये भी पता है कि जो ये स्टोरी है, उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, ही इज़ द सेम सैम, जिसने उसको ये बताया था कि उसने 3rd लेवल क्यों उसने ये उसको वो वहाँ पर पहुँचा था, बिकॉज ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द वरीज ऑफ दैट इज़ क्रिएटेड आफ्टर वॉर, जो मिजरीज जो होती है, जो पीपल जो है वो सफ़र करते हैं वॉर्स के बाद, जो मॉडर्न जो ये लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसमें जितनी वरीज होती हैं, जितने ये कहते हैं ना प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, उनसे ओवरकम होने के लिए या उनसे एस्केप के लिए he was able to enter into the 3rd level, although in reality it was never there. Thank you, students.